Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Fine. So, in the last week, we have started with the probability. We have seen certain definitions, basic definitions like random experiment, impossible events, mutually exclusive events will be what, independent events and exhaustive events, all these kinds of stuff we have already gone through. So today we are going to consider the basic definition, what do you mean by probability, and then we will see the algebra of the probability, and then we'll see the types of probability in which we'll consider the joint and conditional probability. After that we'll go to the Bayes theorem. So first of all, since you have already gone through all these kinds of material at your school level, so I am going to quickly brush up all these things, right? First, so when do we say that when an event will be occurred in the sample space, then we can define a one function associated to that event, right? Suppose this is the event E has been occurred with the sample space, and if you assign one function or a relation which will associate one positive real number including 0. Suppose that real number is C and C belongs to R, and of course C has to be greater than or equal to 0. Then we will call that number as the probability of E, and it is denoted with E. It is denoted with capital P of E. All these things you know. So if S is a sample space, right? So this is the entire set, and from that you are considering the domain as this one now, right? Domain of the function. So F is a sample space of an experiment, and A be any event of the sample space. The probability P of A is of an event is defined as the real valued set function. Real valued क्योंकि ये जो function मिलेगा हमें always real valued होगा, which associates a real value corresponds to the subset A of sample space. मतलब कि इसके corresponding जो पूरा एक real number assign होगा, we will call it as probability of E. Event A is, we have denoted event with capital A later, then it will be probability of A, right? So always probability will be greater than or equal to 0. If you consider the probability of the entire sample space, then it will be always 1. And suppose A1, A2, A3 and so on are mutually exclusive event. Mutually exclusive means suppose ये sample space है, उसमें से ऐसे events होंगे जिनका intersection नहीं मिल रहा होगा, वो totally independent events होंगे, A1, A2, A3 and so on. In that case, probability of union of all these events is same as the individual sum of the individual probability of the events, right? So these three are the basic conditions of the probability that has to satisfy. अगर आप लोगों ने probability स्कूल लेवल में पढ़ी होगी तो उसमें ऐसे डिफाइन किया होगा. फॉर एग्जांपल probability of A, कोई इवेंट A है, उसका probability हमें फाइंड आउट करना है. तो सपोज n is the number of mutually exclusive and exhaustive outcomes, means total number of outcomes जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके जो भी पॉसिबल ऑल आउटकम्स है, सपोज दैट नंबर इज n, राइट? तो एंड सपोज इवेंट ए जो अकर हो रहा है उसके पॉसिबल आउटकम्स जो भी ले रहे हो, सपोज m है, देन प्रोबेबिलिटी a इज डिफाइंड एज m by n, right? So number of outcomes favorable to a in the numerator, and you have to consider its ratio with the number of exhaustive outcomes, means total number of all possible outcomes जो भी आप लोगे, that is n. So m by n is nothing but the probability. That is what you have seen at your school level. Then let us talk about the algebra of this probability. So in that case we have to consider the, since all these probability will be depending on the Venn diagram, and Venn diagram will always look with the unions and intersections. So we have a relation of these kinds of sets with the probability. So what is that? So actually A and B are two events of the sample space, then A union B. Here the set A union B. So suppose this is the sample space and you have two events A and B. So A union B means occurrence of A or B.
right? Or is important. So whenever or is there, you have to consider the union, and simultaneously both the events are occurring, then in that case you have to consider the intersection part, A intersection B, occurrence of A and B. Then addition theorem for the probability means आपको अगर probability of A union B find out करना है तो we know that कि A union B is nothing but A entire set A union entire set B, और उसमें से ये intersection हटा दोगे then it will be considered as A union B, and applying probability to that set relation will have this formula that probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. और जब भी ये दो सेट्स है वो disjoint हो जाएंगे, that means your events are mutually exclusive. In that case there is no intersection, और intersection नहीं होगा तो उसकी probability 0 हो जाएगी. उस केस में your probability sum of the addition theorem for the probability will be reduced to this statement, right? So that is what the algebra corresponds to probability. Now we are going to consider the joint probability. So what do you mean by joint probability? So first of all, joint probability means यहाँ पर हमने intersection में जो part लिया है A intersection B, that is nothing but joint probability. Means it is simply the likelihood that two events will happen at the same time, right? तो A B event occur हो रहा है, B भी event occur हो रहा है, so that is nothing but this intersection part. Joint probability is calculated by multiplying the probability of event A expressed as P of A by the probability of event B expressed as P of B. It is denoted with P of A intersection B. तो P of A intersection B कैसे find out करोगे? तो you will use this formula addition theorem से, तो it will be nothing but P of A plus P of B minus P of A union B. That is this one, right? और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे उस केस में व्हाट विल हैपन, तो इन दैट केस इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये जो फॉर्मूला है इट विल बी दिस वन, राइट? व्हाट डू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा मुझे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलेंगे? कोई एक एग्जांपल से भी आप समझा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देना है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे समझाओगे, किसी को समझाना है तो? नाम में ही उसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, दैट इज द हिंट. Ma'am, there will be any condition associated with it? Yes, condition होगी associated to the occurrence of the event, right? For example, let us talk about the students studying at the Charosat University, right? So total number of students are suppose let us 750 or like that, you can consider any number, right? Total number of students तो ज़्यादा होंगे, but उसमें से अगर हम बात करें कि let me choose the girl student, right? और गर्ल स्टूडेंट में भी डेप्स्टर CAC के सेकेंड सेमेस्टर की मुझे कोई भी लड़की को चूज करना है, मीन्स एक तो इवेंट अकरेंस आप इवेंट का देखोगे तो यू आर चूजिंग अ गर्ल, दैट इज वन event that you can consider as one event, and you are putting a condition that girl has to be from the second semester of Depstar CAC, right? So that the condition you have put. So now when you count the probability of this event, so that is called the conditional probability कि एक तो गर्ल को चूज करना है, ऊपर से वो सेकेंड सेमेस्टर डेप्स्टार की ही होनी चाहिए, so that you have put a condition, so that is called the conditional probability. Another example you can consider कि deck of playing cards अगर आप लोगे उसमें से the most simplest example if we consider, तो उसमें से रेड वाले कार्ड्स में से 6 नंबर ही आपके पास आएगा, तो you have put one more condition to the event. एक तो 52 numbers of cards में से रेड नंबर के कार्ड्स आ जाएंगे, right? That is
divided by 2, 26 number of red cards will be there. और उस 26 में से भी अभी 6 number हो तो उसकी probability क्या होगी? So that is the example of the conditional probability, right? So let us see to that part. The probability that B will occur with the given condition that A has already occurred is called the conditional probability. Means जो चारों सेट वाला एग्जाम्पल लिया उसमें से गर्ल को चूज करना है that has been already occurred, right? फिर उसमें से आपने B will occur, उसमें से आप सेकेंड सेमेस्टर डेथ स्टार स्टूडेंट को डाल रहे हो, that is the conditional probability. It is denoted with P of B/A, right? And it is also interpreted as the probability of B with A as a sample space. राइट मीन्स ये पूरा चारों सेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, सैंपल स्पेस आपका. उसके बाद आप नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स ले रहे हो, राइट, दैट वी कॉल्ड इट एज ए, इवेंट ए. और गर्ल स्टूडेंट में से भी आप उसका सबसेट ले रहे हो बी, दैट इज सेकेंड सेमेस्टर डेथ स्टार स्टूडेंट. तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये क्या होगी? तो इट इज इंटरप्रेटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस इस सेट की प्रोबेबिलिटी विथ ए एज अ सैंपल स्पेस. मींस उस केस में वी हैव टू कंसीडर ए एज अ सैंपल स्पेस. मींस इन दैट केस द फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस वन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट. सिमिलरली ये जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी with respect to A लिया है, similarly you can have probability of A with already occurred event B. So in that case the denominator will be probability of B, right? और product form में अगर आपको लिखना होगा तो from this one you can consider the joint probability, that is P of A intersection B is nothing but product of these two quantities, right? So that is the multiplication theorem. The above definition can be written in the product form given as the multiplication theorem of the probability, that is this one, right? अगर दो event जो है वो independent हो जाएगी, for an independent event, the if probability A remains constant, whether B has occurred or not, then A and B are independent event, right? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर A event है तो B occur हो रहा है नहीं हो रहा है, there will be no change in that particular form. In that case this is given by directly probability of A plus B is nothing but probability of A, right? And independent event होगा तो उस केस में P of A intersection B is nothing but P of A into P of B, and that is known as the multiplication theorem for independent events, right? So up to this the theory part is clear to everyone. Please raise your hand. If you have a doubt, you can raise your query. But let me know all these things are clear to you or not. Since you have gone through it already at your school level and competitive exams में भी आप लोगों ने देखा होगा ये, अगर आपने JEE और सब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया होगा तो all these things have been already studied by you. Fine. So let us consider the examples based on this one, okay? So a card is drawn from a well shuffled pack of cards. What is the probability that it is either a spade or an ace? So now tell me, what do you want to find out in this example? In that, let us assume that A and B are two events getting a spade and S respectively, right? So A event है जब आपको spade मिलेगा and B is the event when you get it as the S. तो tell me, क्या find out करना है इस केस में? And we have to find the probability of whether it is a spade or an ace. और an ace मतलब क्या find out करना पड़ेगा algebra में? Probability algebra में? Union, right? You have to find out. See, A अगर हम event मान ले कि वो जो कार्ड है वो spade का है और B is the event वो S है, तो हमें find out करना है कि that is either a spade or an S. So you have to find out probability of A union B. तो probability of A union B find out करने के लिए हमें क्या find out करना पड़ेगा? तो we have to find out probability of A, probability of B, probability of A intersection B as well. Intersection होगा इस केस में?
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नो इट्स नॉट, क्योंकि हम आप खेलते होगे तो जो ए मिलते हैं एस आपको वो कितने मिलते हैं? 4, तीनों के चारों के अलग अलग आप लोगों को मिलते हैं, तो उसमें स्पेड का एस भी तो होगा, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे नल नहीं है. So in that case, this is not a mutually exclusive event, and hence you have to find out probability of A, probability of B, and probability of A intersection B as well, right? So let us find out all these probability, and from this formula, right, we can have the probability of A union B. So in that case, so let me write, I'm directly writing the solution, right? So let A and B are the events, let A and B be the events of getting a spade and an S respectively. Right? So in that case, probability of A. तो probability of A means what? कि जो deck of cards है उसमें से आपको spade के cards मिलेंगे, उसकी probability कितनी होगी? 13/52. Yes, very good. 13/52. चारों के अलग अलग आप patterns देखोगे तो you will have 13 into 4, that is 52. All these things you have already all these things are known to you. Probability of B means S आएगा, उसकी probability कितनी होगी? तो of course it is 4/52, right? और probability of A intersection B means आपको S भी मिलेगा और वो spade का भी होगा, तो उसकी probability कितनी हो जाएगी? 1/13. 1/13. 13. Is it correct? 1/52. 1/52. 52. ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपको एस भी मिलेगा और वो स्पेड का भी होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितना कहाँ से देखनी है? टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में से देखनी है और उसमें से आप एक चूज कर रहे हो, राइट? तो इट इज 1C1 अपॉन 15C1, so it is 1/52, right? So if you substitute all these things, so probability of getting either spade or an X, we have probability of A union B is equal to probability of A, probability of B. So that is 13/52 plus 4/52 minus 1/52. So in that case, final answer will be 4/13, right? Okay. Then we have this one. If the letters, if the letters of the word attraction are written down at random, find the probability that all T occur together and no T occur together. Means आपको जो letter है attraction, word है attraction, so all the letters of these words are written at random, right? उसमें से आपको probability find out करनी है कि all T's are together, occur together and no T's occur together. दोनों की probability find out करनी है. ये example लेने से पहले I will go through the rules we have already considered, right? तो rules 1 to 6 हम एक बार फिर से देख लेते हैं. If any one of the k different mutually exclusive and exhaustive events can occur on each of n trace, तो number of possible outcome उसमें k raised to n हो जाएंगे, right? फिर अगर
there are K1 events on the first trail, K2 events on the second trail, K in general nth trail में आपके पास Kn events होंगे, तो number of possible outcome will be K1 into K2 into K3 into means product of all these events. फिर number of ways that all n objects can be arranged in order is n factorial, right? Order में. फिर number of ways of arranging r objects selected from n objects is npr, that is this one, and it is यहाँ पर order में हाँ, and when order does not matter it will be given by ncr, right? And sixth rule is if the number of different permutations of n objects where there are n1 repeated items, n2 repeated items, nk repeated items, so it is given by n factorial upon n1 factorial, n2 factorial and so on nk factorials, right? तो यहाँ पर आपको rearrange करना है letters of the word attraction. तो पहले तो number of arrangement कितने होंगे ये word के, ये बताओ मुझे. In this case, you have to consider the possible permutations of all these letters, right? तो letters पहले तो कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 number of letters are there. तो उसके possible outcomes अगर आप देखेंगे तो पहले तो 10 factorial upon the repeated events. Repeated events अगर आप देखोगे means it is the case rule 6. नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन, यहाँ पे आप परम्यूटेशंस की बात कर रहे हो ना, डिफरेंट अरेंजमेंट की अगर लेटर्स की बात करेंगे तो राइट, तो एन ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट है तो इट इज 10 फैक्टोरियल एंड रिपीटेड आइटम्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में हमें फैक्टोरियल फंक्शन लेना है. तो यहाँ पे इफ यू सी a इज रिपीटेड ट्वाइस एंड t इज रिपीटेड थ्राइस, r में नहीं है यहाँ पर, t इज रिपीटेड थ्राइस, सो वी हैव टू कंसीडर 2 factorial corresponds to letter A and 3 factorial corresponds to letter capital T, right? So total number of arrangements of the letter words attraction will be this one. ये total outcome हुआ permutations का, total number of arrangement का. Now the question is सारे जो T है वो एक साथ होंगे तो उसके possible outcomes या उसकी probability क्या होगी. तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू कंसीडर कि सारे जो 3 टी है उसको एक लेटर कंसीडर कर लो, मींस टी 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 ये एक लेटर है फॉर एग्जांपल, राइट? तो उस केस में बाकी के कितने बचे, तो 3 हमने ऑलरेडी ले लिए हैं तो बाकी के बचे 7, तो 7 लेटर्स आर देयर, राइट? तो टी के अलावा जो लेटर्स है दैट इज 7, तो उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो दो 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड एज 7 फैक्टोरियल अपॉन, उसमें रिपीटेड कौन से वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, तो टी तो हमने ऑलरेडी साइड पे रख दिए हैं, राइट? और उसमें ए इज रिपीटेड ट्वाइस, राइट? सो इट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट? सो नाउ अभी 8th प्लेस है, सो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हुई, तो अदर देन टी वेरिएबल्स, वेरिएबल नहीं लेटर्स जो भी है उसको अरेंज करने की ये प्रोबेबिलिटी हुई, राइट? आई विल ब्लॉक दिस वन. हमें अभी चाहिए क्या, वी वांट ऑल टी टुगेदर, तो ऑल टी टुगेदर मींस ये एक लेटर और बाकी के बचे 7, तो देयर आर टोटल 8 लेटर्स, राइट? और 8 लेटर्स में रिपीट कितने हो रहे हैं, 8 लेटर्स है तो 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में, और उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, रिपीटेड इवेंट्स कितने हैं, 2 करस्पॉन्डिंग टू लेटर ए, तो इट विल बी 2 फैक्टोरियल. तो ये एक्चुअली कौन सी इवेंट अकर हुई कि जब टी एक साथ होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या होंगे, तो इट विल बी दिस वन. When you divide it with the total number of outcome of the sample space, that is 10 factorial upon 2 factorial upon 3 factorial, so this one will be the probability when all t will be together in the word attraction. तो उसको अगर हम event A बोल देंगे तो probability will be given by this one, right? If you simplify this, you can
see it will be 9 into 10 and this one will be nothing but 1 by 15. 1 upon 15 will be the answer. ये समझ में आया सबको? Please raise your hand if you are having clear-cut idea about this one. Ma'am, can you explain it again? एक मिनट. ये टोटल 10 नंबर ऑफ लेटर्स आपको दिए हुए हैं, राइट? उसमें से टी एक साथ आ जाए ऐसे अरेंजमेंट, नंबर ऑफ उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो आई हैव रिटन टी एट अ टाइम एक साथ में, और इसको कंसीडर कीजिए 1 लेटर ओनली टी डैश, राइट? क्योंकि इसके साथ एक साथ लिख दिए, फिर आप उसका कोई भी अरेंजमेंट लोगे इट विल बी सेम. टी को पहले, ये टी को पहले लिखो बाद में लिखो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो लेट अस कंसीडर दिस एज 1 लेटर ओनली, राइट? तो बाकी के क्या बचे लेटर? तो ए आर बचा, फिर ए बचा, सी, टी वी हैव ऑलरेडी कंसीडर, आई, ओ एंड एन. तो ये कितने नंबर ऑफ लेटर्स है? तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक और लेटर, तो ये 8 फैक्टोरियल होगा इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम अरेंजमेंट का. यस और नो? Yes, ma'am. ओके. और उसमें से रिपीटेड इवेंट्स कितनी है? तो नाउ दिस इज 1 लेटर ओनली. यहाँ पे हम टी रिपीट नहीं कर रहे, बट यहाँ पर ए रिपीटेड ट्वाइस. तो जो इवेंट, ये जो आपको टी एक साथ लेके लेटर मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अभी जो इवेंट ए है, इवेंट ए क्या है? तो इवेंट ए मीन्स ऑल टी विल बी टुगेदर. तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन आप अगर देखोगे, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है. तो इट इज एक्चुअली इवेंट ए अकर होने के पॉसिबल आउटकम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस, राइट? तो यहाँ पर इवेंट ए अकर होने के पॉसिबल आउटकम मीन्स इट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सैंपल स्पेस के अकर होने के आउटकम मीन्स इट इज दिस वन, rearrangement of all these letters. So it is 10 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, fine. So now next one is कि no two t occur together. No two t's occur together. तो इस ये एग्जाम्पल कैसे करोगे? Ma'am, we'll find the probability of 2 t's occurring together and then we'll subtract it from whole. That is one way. Another way is कि आप All probability minus all 3 t's together. t's together, ये जो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो आपको क्या देगा कि all t not 3 t not together. हमें चाहिए 2 t not together. आप समझ रहे हो जो आप आंसर दे रहे हो वो? यहाँ पे all t together है 3t, उसका कॉम्प्लीमेंट आप लोगे दैट इज 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी t ऑफ a, तो वो आपको देगा कि all 3t will not occur together, but we want no 2 t's occur together. तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे? तो लेट अस कीप दिस 3t असाइड. तो यहाँ पर A R A C I O N इतने लेटर्स बच जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर एक T आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर यस आप यहाँ पर रख सकते हो, राइट? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस यहाँ पे बचेंगे, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी आप रख सकते हो. तो 6 +1 +1, राइट? तो ये 8 प्लेसेस है जिसमें आपको 3 t को प्लेस करना है. तो इन दैट केस 8C3 विल बी द चॉइस, राइट? और उसमें से भी अगर अरेंजमेंट सारे आप अगर कंसीडर करोगे सारे अरेंजमेंट, तो नो टीज विल बी टुगेदर. तो उस केस में वी हैव टू कंसीडर, अभी ये तो हमने ले लिया ARACION, ये अरेंजमेंट है. फिर आप ये नंबर्स को भी शफल कर सकते हो. तो उस केस में शफलिंग अगर आप देखोगे तो उसके अरेंजमेंट कितने होंगे? तो देयर आर 7 लेटर्स अमॉन्ग्स व्हिच A इज रिपीटेड ट्वाइस.
तो इतनी पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी पॉसिबल आउटकम की, यस और नो? मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? ओके, पहले तो मुझे ये बताओ कि टी के अलावा जो बाकी के लेटर 7 बचे हैं यहाँ पर, रुको ये बहुत सारा मैशअप हो गया है, लेट मी राइट इट अगेन। टी के अलावा जो बाकी के लेटर्स बचे हैं वो कौन से हैं? तो ए, आर, ए, सी, आई, ओ, एन, राइट, ये 7 लेटर्स है। तो उसके अरेंजमेंट कितने होंगे? तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना? यस मैम। ओके, उसमें से हमें टी को साथ में नहीं रखना है, राइट? तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि टी को आप यहाँ पे रख सकते हो ये सारे लेटर्स के बीच में। कितनी जगह मिली आपको? 1 2 3 4 5 6। एक्सट्रीम वैल्यूज भी आप ले सकते हो दोनों तरफ। तो टोटल नंबर कितने हुए, प्लेसेस कितने हुए जहां पे आप टी रख सकते हो, और 2 टी साथ में नहीं आएंगे तो कितने प्लेसेस हुए? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8, और 8 में से आपको कितने ऑब्जेक्ट को रखना है वहां पर? रूल्स, इसीलिए मैंने रूल्स को रिकॉल करवाया था आपको, अगर याद हो तो। यहाँ पर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे टी आप कोई भी लोगे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो इट विल बी गिवन बाय 8C3 फॉर दिस एग्जाम्पल, यस और नो? यस मैम। तो 8C3 किसके लिए मिला? तो आप टी को रीअरेंज कर सकते हो इसीलिए। और ये तो अभी एक कॉम्बिनेशन लिया है, इतने कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो इट इज दिस वन। तो टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितने होंगे? तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये हुए पॉसिबल आउटकम ऑफ द इवेंट ए अकरिंग। अगर इवेंट ए हम क्या ले कि नंबर ऑफ 2 टीज कैन नॉट अकर टुगेदर, तो ये इवेंट ए के आउटकम्स हुए या नहीं, हाँ या ना? यस मैम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? तो इस आउटकम को आप टोटल आउटकम से डिवाइड करो, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर नाउ? जिन्होंने बोला था मैडम फिर से एक्सप्लेन करो, उनको समझ में आया, हाँ या ना? ओके, तो इसका आंसर आप सिंप्लीफाई करके बोलो तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन? HC3 means it will be 8 factorial upon 5 factorial into 3 factorial. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? Seven by 15. 7 by 15. ओके फाइन, राइट। ओके, अब मैं है ना एग्जाम्पल पूरा यहाँ पर ही लिखती हूँ, तो आप लोग लिखोगे और साथ में समझ भी पाओगे। अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, दैट the probabilities of success for 3 products introduced in the market are 1 by 3, 2 by 5 and 2 by 3 respectively. Assuming independence,
इंडिपेंडेंस एज्यूम कर रहे हैं उसका मीनिंग है कि ये तीनों जो इवेंट्स अकर हो रही है वो इंडिपेंडेंट है, किसी एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर या तीसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, राइट? सो एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, फाइंड वन, द प्रोबेबिलिटी that the three products are successful to the probability that none of the product is successful. None of the product is successful. Read the question carefully and let me know what is asked and what is given. What is asked? What is given? Ma'am, we are given probability of success of 3 products. Yes. और पूछा क्या है? और पूछा क्या है? एक MI का फोन है, एक सैमसंग का फोन है और एक एप्पल का फोन है। तीनों के प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है सक्सेस के, राइट? अभी पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, मींस ये तीनों प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। अब बताओ अब क्या पूछा है? A union B union C. A यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम यूनियन लेते हैं तो MI का प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल है, सैमसंग का भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, या तो एप्पल का प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, ये पूछा है। हाँ फर्स्ट केस में ही है। 3 प्रोडक्ट्स मैम इंटरसेक्शन Yes, ma'am, इंटरसेक्शन intersection. पूछा है। इंटरसेक्शन मैम हाँ, प्रोबेबिलिटी 3 प्रोडक्ट्स के सक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 इवेंट्स। और प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल मींस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है। फॉर एग्जांपल ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये इवेंट सी है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल, तो वो क्या हो जाएगा? 1 - ये सक्सेस का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और नन ऑफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, मतलब ये तीनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So let me write down the solution now if you are getting it. So A, that is first product is successful. B means it is second product is successful, and C means it is third product is successful, right? So given probability of A, that is 1/3, probability of B, that is 2/5, and probability of C, that is 2/3। मीन्स ये कंपनीज ने जो क्लेम किया है कि ये तीनों का सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, that is the given, and we are asked first one कि तीनों के तीनों प्रोबेबिलिटी, तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट केस इज that is probability of A intersection probability of B intersection probability of C। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऑफ कोर्स हमें दिया हुआ है assuming the independence, राइट?
तो इंडिपेंडेंस दिया होता है तो उस केस में इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन रूल से इट इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी where A and B are independent events, right? So this is same as probability of A into probability of B into probability of C, that is 1 by 3 into 2 by 5 into 2 by 3, right? So this is nothing but 4 upon 45. And second case is none of the product is successful. So in that case probability of A complement intersection B complement intersection C complement, right? तो सक्सेस अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो नॉट सक्सेस विल बी ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट? तो उस केस में इट इज सेम एज दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C complement, right? So that is same as 1 minus 1 by 3, 1 minus 2 by 5, 1 minus 2 by 3. तो इवैल्यूएट करो फाइनल आंसर और मुझे बताओ क्या होगा. 2 by 50. 2 by 50. Good. Right? Okay. Now I am going to give you one example. आपको अपना दिमाग लगाना है. For this example, in 2 successive throws of a pair of dice, determine the probability of getting total of 8 each time. What is given and what is asked? जल्दी बताओ क्या करना क्या है आप लोगों को, ये बताओ पहले. जो डाइस थ्रो की है तो उसमें सैंपल स्पेस टोटल 36 होगा. 6 वेरी गुड, करेक्ट. उसमें से टोटल 8 होना चाहिए, तो ऐसे 5 केस होंगे तो 5 by 36. इवेंट ए के इवेंट बी के, राइट? 2 सक्सेसिव थ्रोज हमें लेने हैं ना, तो फर्स्ट थ्रो अगर आप जब भी लेते हो तो उस केस को अगर हम इवेंट ए बोलेंगे, सेकेंड सक्सेसिव जो थ्रो ले रहे हो उसको हम इवेंट बी बोलेंगे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, दैट इज 5 by 36. कैसे? तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डायस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8 ईच टाइम. तो डायस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं, उसमें से आपको ऐसे जो 2 पैर जब भी आप डालोगे तो 8 टोटल मिले, इसके कितने चांसेस है, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे इस केस में, तो 1 के साथ 8 होने के चांसेस तो नहीं है. देन इफ यू कंसीडर 2, तो 2 और 6 अगर आते हैं पैर में फर्स्ट थ्रो में, राइट, तो इट कैन बी कंसीडर एज अ टोटल ऑफ 8. तो 2 और 6, फर्स्ट डायस में 2, सेकेंड डायस में 6, और उसका रिवर्स भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज 6 into 2, 6 और 2. फिर 3 अगर आता है तो उस केस में सेकेंड डायस में 5 आएगा, तो उसका भी टोटल 8 हो जाएगा. एंड रिवर्स ऑफ इट ऑल्सो कैन बी कंसीडर एज 1 occurrence. So 5 and 3. Then if we consider 4, तो 4, तो पहले डायस में 4 आया, सेकेंड डायस में 4 आया, तो उसका अगर रिवर्स लोगे वो भी सेम ही रहेगा. तो देयर आर टोटल 5 आउटकम्स है यहाँ पर, जब आपको टोटल ऑफ 8 मिलेगा, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम सैंपल्स के कितने हो जाएंगे, तो इट इज 6 into 6, दैट इज 36. तो अगर हम इवेंट ए ले,
that is first throw of a pair of dice for which you are getting total of 8. In that case you will have the probability 5/36. 5 क्यों? क्योंकि number of outcomes आप ये जो देखोगे that is 5. और सिमिलरली सेकेंड थ्रो में भी आपको यही चीज मिले तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36, राइट? तो दोनों केस में नाउ तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मींस क्या चाहिए आपको? तो यू आर having probability of A intersection B joint probability चाहिए कि दोनों थ्रो में आपको 8 भी मिलेंगे simultaneously, right? और ये जो दो है वो independent events है तो that is same as probability of A into probability of B, that is 25/1296 will be the final answer in this case. Is it clear to everyone? Please raise your hand. ओके फाइन. अच्छा, वो जो चारों सेट का एग्जाम्पल हमने अभी कंसिडर किया था वैसा ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पर. व्हाट इज दैट? मैम यस, अगर सक्सेसिव की जगह साइमल्टेनियस होता तो सिर्फ 5/36 आता. साइमल्टेनियस होता तो क्या फर्क पड़ता? दोनों इवेंट साथ में होंगे ना. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक के बाद एक हो रहा है. इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, वो दोनों पेयर ऑफ डाइस मतलब दोनों साथ में. आप जो बोल रहे हो साइमल्टेनियस में उसमें नंबर ऑफ डायस कितने चाहिए? उसमें भी 36 ही होंगे. साइमल्टेनियस अगर आपको दोनों इवेंट करने हैं तो नंबर ऑफ डायस कितने चाहिए? 2. साइमल्टेनियस होगा दो. अगर आप एक पैर डायस ले रहे हो तो साइमल्टेनियस होगा दोनों इवेंट. मतलब दोनों एक साथ स्क्रॉल करे तो नहीं होगा. यहाँ पे दोनों एक साथ ही कर रहे हैं. आप समझे नहीं हो मुझे लग रहा है. एग्जाम्पल, दो डायल्स को एक बार थ्रो कर रहे हैं और फिर दूसरी बार थ्रो कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ए 2 सक्सेसिव थ्रोज. और उसमें से टोटल 8 आएगा. वो दोनों डायस में से एक के पास 2 आया, दूसरे के पास 6 आया, तो उसका टोटल 8 हुआ. तो दैट इज वन पॉसिबल आउटकम वी हैव कंसिडर्ड. समझ में आ रहा है? यस मैम. आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ या क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हुआ? हाँ, पता चल गया. ओके फाइन. ओके, yeah, now this one. In a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen girl is a girl, sorry, chosen student is a girl? कौन सी प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, सैंपल स्पेस जो 1000 है उसमें से 430 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, राइट? उसमें से 10% जो है उसके मींस 43 वो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, राइट? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट वो स्टूडेंट भी गर्ल ही होनी चाहिए. तो दिस इज द केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? तो कौन सी अगर हम ई इवेंट जो है फॉर एग्जांपल ए इवेंट ले ले तो ए इज द इवेंट दैट स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, राइट? बी इवेंट ले लेंगे अगर हम
कि वो जो स्टूडेंट रैंडमली हमने चूज किया है वो गर्ल है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस चीज की, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसके ऊपर किसकी फाइंड आउट करनी है, प्लीज टेल मी। कंडीशन कौन सी है? Ma'am, the student is of 12th class and it's a girl. कंडीशन कौन सी है? Is a girl. इज ए गर्ल मीन्स आपको चूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि वो 12th स्टैंडर्ड की चाहिए, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी, राइट, कि वो स्टडी इन क्लास 12 और गिवन दैट मीन्स उसके ऊपर कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन इज दैट chosen student is a girl, so you have to find out this conditional probability A over B, right? So from the formula A over B means P of क्या होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B मीन्स 12th में भी है और वो गर्ल भी है, 12th में है तो उतने उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो इट इज 43 और 43 ओवर अ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000, तो A इंटरसेक्शन B जो है दैट इज 43 अपॉन 1000 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B मींस व्हाट? B हमने क्या लिया है? गर्ल स्टूडेंट कितनी है, तो देयर आर 43 ओवर 1000, 430 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पॉइंट 1, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Any doubt? Okay. उसके बाद again let us consider one example based on DAS. यहाँ पर a die is thrown twice, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायस ले रहे हैं और वो 2 बार हम लोग उसका थ्रो कर रहे हैं। The sum of the numbers appearing is observed to be 6, right? तो नंबर जो भी appear हो रहे हैं 2 बार उसको डाल रहे हैं और उसके नंबर्स जो है सम appear हो रहा है, जब भी 6 appear हो रहा है तो उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once? इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेनी है कि 4 भी आए, एटलीस्ट एक बार 4 आए और वो 4 आने के साथ वो थ्रो में उसका जो सम है वो 6 आना चाहिए। तो पहले तो आप जब भी डायस को थ्रो करते हो 2 बार, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स सम आपको 6 मिलेगा? तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि डायस को 2 बार थ्रो किया, एक बार 1 आया, एक बार 5 आया, तो उसका सम हो जाएगा 6, राइट? फिर दूसरा अगर आप लेते हो, लेट मी चूज दिस पैरेंथेसिस फॉर दिस वन, फिर आप इसका रिवर्स भी ले सकते हो, राइट? रिवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा? तो दैट इज पहली बार 5 आया, फिर 1 आया। फिर अदर पॉसिबिलिटी इज 2 अगर लेते हो तो उस केस में 4 आएगा दूसरे में, एंड रिवर्स ऑफ इट विल बी आल्सो दिस वन। और उसके बाद 3 लिया तो 3 and 3, उसकी रिवर्स प्रोसेस हम नहीं ले सकते। तो ये हुआ जब सम 6 होता है। तो सपोज इफ आई डिनोट दिस आउटकम, दिस इवेंट एज बी, राइट? तो और ए जो इवेंट है वो क्या है? तो 4 एटलीस्ट 1 आ जाए, वंस आ जाए थ्रो में, तो ए इज द इवेंट, तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? तो 4 एक बार आया, उसके साथ 1 आया, 4 एक बार आया, दूसरे थ्रो में उसके साथ 2 आया, 4 एक बार आया, फिर 3 आया, 4 के साथ 4 आया, 4 के साथ 5 आया, एंड 4 के साथ 6 आया।
और इन सारों की रिवर्स पॉसिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी एक्सेप्ट दिस वन, दैट मीन्स इट विल बी 1 4 2 4 then 3 4 एंड 4 4 नहीं ले सकते, 5 4 एंड 6 4। तो एटलीस्ट एक बार 4 आ जाए उसके इवेंट जो है, दैट इज सपोज इफ वी डिनोट दैट इवेंट विथ ए, देन दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उसके आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आप डैश को 2 बार थ्रो कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी 36। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी काउंट करेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो इट इज 1 2 3 4 5, तो 5/36 हो जाएगा, राइट। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट नंबर ऑफ 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, और सम 6 हो वो तो और कंडीशन रखी हुई है, राइट। तो इन दैट केस व्हाट इज आस्क्ड, ए ओवर बी, 4 आ जाए और उसके ऊपर सम तो 6 होना ही चाहिए, तो a ओवर b हमें पूछा है, तो इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, राइट। तो अभी क्वेश्चन इज a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो आप ये दोनों आउटकम्स को देखोगे तो उसमें से कौन से ऐसे इवेंट है जो इंटरसेक्शन में है, तो 4 अकर्ड ओनली इन दिस केस 2, तो इट इज 2, 2 ही इवेंट है, तो 2/36, total number of possible outcomes is 32/36, or probability of B which is 5/36. So the final conditional probability कि at least एक बार 4 आए और उसका सम भी 6 हो दोनों थ्रो में, तो that probability is 2/5. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt in this example? Okay, if you don't have a doubt, then I will stop here. Tomorrow we'll discuss a Bayes theorem, and I am planning to keep one extra class on Saturday because next week you might have the last probable week to complete the syllabus. So I am planning to keep one extra class on Saturday. Do you have any arranged class or lecture on Saturday? No, Yes. ma'am. No. Okay, fine. Then I will send the scheduled time, right? मीटिंग भी है हमारे डिपार्टमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल सेंड यू द टाइम फॉर द सैटरडेज एक्स्ट्रा क्लास। ओके, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। आपको कल मैं बता दूंगी कि कितने बजे सैटरडे हम लोग मिल रहे हैं। फाइन, सो नाउ इफ यू डोंट हैव अ डाउट यू कैन लीव दिस मीटिंग। बाय, टेक केयर। Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.